کیے گئے ہیں، لیکن پچھلے 2 سال میں تشہیر پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا ہے۔ کہ پرائم منسٹر کے 15 پوائنٹ جو پروگرام ہے، ان میں پروگرام نمبر 3 ہندوستان بھر میں اردو ٹیچرز رکھنے کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اگر کہیں بھی ضرورت ہوگی تو پرائم منسٹر کے فنڈ سے ان کو تنخواہ دی جائے گی۔ اس 30 پوائنٹ نمبر 3 کی تشہیر کے لیے، پبلسٹی کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے 50 لاکھ روپیہ سال ایلوکیٹ کر رکھا ہے صرف پبلسٹی کے لیے، لیکن RTI سے پتہ چلا ہے کہ پچھلے 4 سال میں HRD منسٹری نے اور مائنورٹی افیئرز منسٹری نے اس کی پبلسٹی کا آنے والا 2 کروڑ روپیہ ہی خرچ نہیں کیا، 1 روپیہ خرچ نہیں کیا۔ تو جب پبلسٹی پر ہی خرچ نہیں کیا، کس کو پتہ چلے گا اور کیسے آپ ایماندار ثابت ہوں گے کہ آپ باقی اسکیموں پہ آپ عمل کرا رہے ہیں؟ رکن پارلیمنٹ اور JDU لیڈر صابر علی نے 15 نکاتی پروگرام کے معاملے میں حکومت کی منشا پر ہی سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب مرکز کی نیت ہی صاف نہ ہو تو ریاستیں کیا کر سکتی ہیں؟ کسی ایک سرکار کو ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ اسٹیٹ کو جو بھارت سرکار چاہتی ہے، معاملات جو صاف صاف ہوتے ہیں، ان کے ذہن صاف ہوتی ہے، وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار کو کی جو ذہنیت ہے اس معاملے میں صاف نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اردو کے بہت بڑے ادیب تھے، یا یہ کہے کہ ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی وفات 1946 میں ہو گئی تھی، تو شاید آپ اس کو دماغی خلل تصور کریں، لیکن یہ کارنامہ اتر پردیش کے سرکاری اسکولوں میں پڑھائی جانے والی اردو کی درسی کتابوں نے کر دکھایا ہے۔ درجہ اول سے 8ویں جماعت تک کی ان درسی کتابوں میں ایسی غلطیاں ہیں جن کو دیکھ کر اردو داں طبقہ سخت ناراض ہے۔ سلیبس کی ان کتابوں کو فوراً واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے کانپور سے ہمارے نمائندے مشتاق عامر کی ایک خاص رپورٹ۔ تعلیمی سال میں تقریباً 3 ماہ ہی باقی بچے ہیں۔ بڑی جدوجہد اور مطالبات کے بعد اتر پردیش کے سرکاری اسکولوں میں اردو کی درسی کتابیں فراہم کی گئی ہیں، لیکن یہ کتابیں غلطیوں سے بھری پڑی ہیں۔ کچھ معلومات آدھی ادھوری ہیں اور کچھ غلطیاں مضحکہ خیز ہیں۔ مثلاً اردو کے معروف ادیب پروفیسر احتشام حسین کا مضمون اردو زبان کی ابتدا شامل کیا گیا ہے، لیکن مضمون نگار کی تصویر کی جگہ بھیم راؤ امبیڈکر کی تصویر لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی تاریخ وفات ملک کی آزادی سے پہلے یعنی 1946 بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش ملک کی ان 5 ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ صرف یہ کہ لاپرواہی اور جب کتابیں چھپ گئیں اس کی تصحیح نہ کرنے اور جو تصحیح کرنے والے ان کی غیر ذمہ دارانہ روش۔ کتابوں کی پوری سیریز کے ہر باب میں کوئی نہ کوئی غلطی موجود ہے۔ ایک کتاب میں علامہ اقبال کی مشہور نظم پرندے کی فریاد شامل کی گئی ہے، لیکن نظم میں شاعر کا نام ہی غائب کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مشکل الفاظ کے جو معنی دیے گئے ہیں ان میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ اردو والوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کتابوں کو نہ صرف واپس لے بلکہ اس کے ذمہ داروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے، اور اس کے لیے ذمہ داران کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے اور ان اردو کتابوں کو ترنت حکومت اتر پردیش کو واپس لے لینا چاہیے تاکہ غلط طریقے سے بچوں کی تعلیم نہ ہو سکے، کیونکہ اگر اسکولوں میں ہی تعلیم غلط طریقے سے دی جائے گی، تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات یا رہبران کے نام کچھ فوٹو الگ، تو اس سے چھوٹے چھوٹے بچوں اور معصوم بچے اور کچے ذہن میں ان کی تصویر غلط آ جائے گی اور اس کو پھر ہم کبھی بھی ان کا سدھار نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری تو حکومت اتر پردیش سے گزارش یہ ہے کہ وہ جلد از جلد ساری کتابوں کو واپس لے اور دوبارہ اس کو مرتب کرے اور جو ذمہ دار ہیں اس کو سخت سے سخت اس کے خلاف کارروائی کرے۔ جس زبان کو بولنے والوں کی اکثریت نے ان کو وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچایا اور جس میں ایک قداور وزیر اعظم خان بھی موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تمام یہ شعبے جات ان کے انڈر میں ہیں۔ اردو اکیڈمی ہے، فروغ اردو کونسل ہے، تمام جو کام ان کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کی غلطی ناقابل تلافی ہے، ناقابل معافی ہے۔ ذرا بھی اردو والوں سے، محبان اردو سے ذرا بھی احساس ہے ان کے تعلق کا تو اسے فوراً جو ہے ڈائریکٹرز کو سسپینڈ کرنا چاہیے، اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل کارروائی ہونا چاہیے۔ ان کتابوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ محکمے نے جیسے تیسے کر کے
اردو کتابوں کے مطالبے سے جان چھڑائی ہے، لیکن اردو ٹیچرز کے سامنے اب یہ مسئلہ ہے کہ ان کتابوں کا کیا کریں، بچوں کو یہی کتابیں پڑھائیں یا پھر یہ سال بھی اردو کی تعلیم دیے بغیر ہی ختم کر دیا جائے۔ ETV نیوز کانپور۔ اتر پردیش کے DGP رضوان احمد نے مدرسوں کے تعلق سے پھیلی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لکھنؤ میں یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک مدرسے کے پروگرام میں شرکت کے دوران انہوں نے تلقین کی کہ مدرسوں سے فارغ طلباء کی شناخت اچھے انسان کی ہونی چاہیے۔ اس موقع پر سابق IPS افسر منظور احمد کو تعلیمی خدمات اور وسیم حیدر کو سماجی خدمات کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس پروگرام کی صدارت اس موضوع پہ مدرسے دیکھیے ایسے غلط فہمیاں کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، اور میں تو جنرل یہی بات کرتا ہوں کہ آپس میں جو اوشواس کی بھاونا ہے، جو شنکائیں ہیں، جو بھرانتیاں ہیں، وہ سب ختم ہونی چاہیے، اور پیار اور محبت، آپسی ہم آہنگی اور جو ہے یہ ایک جہتی، اس پہ میں وشیش روپ سے زور دیتا ہوں۔ اس طرح مائنورٹی کو اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے ایسے اداروں کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہم اپنے اعتقادات سکھاتے ہیں، اپنا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ملٹی کلچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبھی کلچر کو پروان چڑھنے کا موقع ملے، یہ فرض ہے۔ یہ پچھڑا علاقہ ہے، پسماندہ ہے تعلیم کے میدان میں۔ یہ بچے پڑھتے ہیں یہاں تو اس سے اسکولوں میں جاتے ہیں، یہ اس کے بعد یہاں پڑھتے ہیں تو ان کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے۔ مستحق علماء کو عمرہ کرانے کے لیے دہلی کے اہل خیر حضرات نے پہل کی ہے۔ تغلق آباد کے مدرسہ راویہ بصریہ کے ذمہ داروں نے ہر سال ایک عالم دین کو مدرسہ کمیٹی کے خرچ سے عمرے پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اعلان رسول کانفرنس میں کیا گیا۔ دہلی کے تغلق آباد میں ولادت رسول کانفرنس ہوئی۔ مدرسہ رابعہ بصریہ کی جانب سے ہوئی اس کانفرنس میں مندوبین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس میں دنیا میں پھیل رہی برائیوں، بد اخلاقی اور مسائل سے دوچار انسانیت کا ذکر سامنے آیا تو پروگرام کا انعقاد کرنے والی مدرسہ کمیٹی نے اپنے خرچ پر مستحق علماء کو عمرہ کی سعادت مہیا کرانے کا اعلان کیا۔ مدرسہ رابعہ بصریہ کے جتنے بھی کارکنان ہیں، یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہر سال ان تمام علماؤں میں سے ایک عالم کو چنا جائے گا اور اس کو عمرہ پر بھیجا جائے گا۔ اس کا خرچہ مدرسہ رابعہ بصریہ کے جتنے بھی کمیٹی کے ممبران ہیں، سبھی لوگ اس کا خرچہ اٹھائیں گے مل جل کر۔ ملک بھر سے آئے سنی علماء اکرام نے اپنے خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق حسنہ کو پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ نئی نسلوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم سے بھی آراستہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ دارالرابعہ بصریہ کا جو قیام اس لیے کیا کہ جس سے کہ بچیاں جو ہے خاص طور سے جن کے اندر اسلامک تعلیم نہیں ہو وہ تعلیم سے آراستہ ہو جائیں۔ آج بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات کو سامنے رکھا جائے اور ان کی حسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، اور تمام جو مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، یقینی طور پر ان کی تعلیمات میں حل کرنے کی اگر کوشش کیا جائے تو مکمل ہو سکتی ہیں۔ کانفرنس کے دوران ملک بھر سے آئے علماء کرام میں سے 10 علماء کو توصیفی اسناد و اعزاز سے نوازا گیا۔ ETV نیوز دہلی۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں، دیش یوا ہے۔ دیش کے 50% سے زیادہ لوگ انڈر 30 ہیں، یوا ہیں۔ ان کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، بلیفز ہیں، مائنڈ سیٹ ہے، وہ آبویسلی ایک یوا ہی بہتر سمجھ سکتا ہے جو لبرل ہو، جو اوپن مائنڈڈ ہو۔ اور وہ اگین نو راکٹ سائنس۔ کانگریس کے لیڈرز ہیں جن کے ساتھ یوتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ وہ گانا ہے نا، ہم ہیں نئے انداز کیوں ہو پرانا، کٹر سوچ نہیں یوا جوش۔ میں حسیبہ امین، راہل گاندھی جی کی اس یوا سوچ سے جڑی ایک یوا کانگریس کاریہ کرتا۔ ہر ہاتھ شکتی، ہر ہاتھ ترقی۔ اپنائیے میلا اسکن کریم۔ اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات۔ ملک بھر میں کل
जमहूरियत का जश्न मनाया गया। अमर जवान ज्योति पर वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने शहीदों को गुलाहे अक़ीदत पेश किए। इस बार यौम जमहूरिया की तकरीब में जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे मेहमान खुसूसी थे। यौम जमहूरिया तकरीब के पेश नज़र दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। परेड के रूट विजय चौक से लेकर लाल किले तक की चौकसी पर 35,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। परेड रूट के अतराफ 160 सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए थे। कौमी राजधानी दिल्ली के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी यौम जमहूरिया तकारीब के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। मुल्क भर में आज जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है। अमर जवान ज्योति पर वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शहीदों को गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इस बार यौम जमहूरिया की तकरीब में जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे मेहमान खुसूसी हैं। यौम जमहूरिया तकरीब के पेश नज़र दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। परेड के रूट विजय चौक से लेकर लाल किले तक की चौकसी पर 35,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। परेड रूट के अतराफ 160 सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए। कौमी राजधानी दिल्ली के साथ साथ मुल्क के दीगर बड़े शहरों में भी यौम जमहूरिया तकारीब के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। लड़ाकू बेड़े में वापीती बाईप्लेन से लेकर सुखोई 30 MKI को दिखाया गया है और परिवहन बेड़े के डकोटा अब तक मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन 2 में 70 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं। इसे स्वदेश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। As is only appropriate, the last tableau in the DRDO column shows us the future of the battlefield. In land, remotely operated vehicle, confined space remotely operated vehicle, and gun-mounted remotely operated vehicle. Soldier. Here come those who gave their youth for the service of the nation, our ex-servicemen. Rays of sunshine on Rajpath. The BSF. यौम जमहूरिया के मौके पर कानपुर के मारूफ दीनी इदारे जामिया महमूदिया में जश्न जमहूरियत का इनेकाद किया गया। जामिया की मस्जिद में मुनक्किद होने वाले इस जलसे में तलबा ने हुब्बुल वतनी और आजादी के मौजू पर अपनी तकारीर और नज़में पेश की। इस मौके पर जामिया महमूदिया के तलबा ने यौम जमहूरिया की मुनासबत से अपने ख्यालात का इजहार भी किया। बेंगलुरु के अक़लियती तालीमी इदारों में जोशो खरोश के साथ 65वां यौम जमहूरिया मनाया गया। शहर की सिटी जामा मस्जिद के रूबरू जामिउल उलूम के नायब सदर अत्तार सैयद मुर्तजा हुसैन ने तिरंगा लहराया। जामिउल उलूम के अलावा अल अमीन कॉलेज, अब्बास खान कॉलेज, हसनात कॉलेज और बेंगलुरु के सरकारी उर्दू स्कूलों में भी यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक्किद की गईं। मेरठ में जश्न जमहूरिया के मौके पर प्रभात फेरी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों और मदारिस के तलबा ने जुलूस में शिरकत की। इसके अलावा विकलांग एकता सद्भावना समिति ने भी जुलूस निकाला। 22 नंबर पर यौम जमहूरिया के मौके पर राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर के SMS मैदान में कौमी परचम लहराया गया। रियासती गवर्नर मार्गरेट अलवा के हाथों परचम कुशाई हुई। इस तकरीब के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों और मदारिस में भी रस्म परचम कुशाई अदा की गई। भोपाल में भी जहां सरकारी तौर पर परचम कुशाई की गई, वहीं अक़लियती इदारों, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के दफातर में भी जश्न जमहूरिया का इनेकाद किया गया। यौम जमहूरिया के मौके पर कानपुर में जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम मुख्तलिफ इदारों के तलबा ने शिरकत की और कौमी तराना गाया। परचम कुशाई जमीयत उलमा हिंद के रियासती नायब सदर मौलाना मतीनुल हक उसामा ने की। हमारा मुल्क जो बहुत कुर्बानियों से आज़ाद हुआ और हमारे बुजुर्गों ने इसका दस्तूर ऐसा बनाया कि सारे हिंदुस्तानियों को यकसा हुकूक दिए। उलमा इकराम ने ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी मुल्क को आज़ाद कराने में। यौम जमहूरिया का पैगाम ये है कि यहाँ इंसाफ कायम हो, अमन कायम हो, सारे हिंदुस्तानी महसूस करें कि हम आज़ाद फ़ज़ा में जी रहे हैं। मुल्क के 65वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह नांदेड़ में रियासती वजीर DP सावंत के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। साथ ही लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर परचम कुशाई के साथ ही पुलिस दल की जानिब से रिवायती परेड का एहतमाम किया गया। रांची के मोराबादी मैदान में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। परचम कुशाई का फरीजा रियासत के वजीर आला हेमंत सोरेन ने अदा की। हेमंत सोरेन ने जहां अपनी हुकूमत की दीगर हुसूलियाबियों और मसाइल का जिक्र किया, वहीं उर्दू का जिक्र करते हुए बताया कि अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत
अमली इकदामात कर रही है। प्रस्तुति आप इस झांकी में देख रहे हैं। नलकूप की मरम्मती की अल्पसंख्यकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों एवं मदरसाओं को अनुदान दिया गया है। मदरसाओं की प्रस्वीकृति में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर कर अनुदान का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति कार्रवाई प्रारंभ की गई। मालेगांव में भी योम जमहूरिया के मौके पर समाजी तंजीम तिरंगा परिवार की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। नई नस्ल में हुब्बुल वतनी को फरोग देने की गरज से मुनक्किदा इस रैली में कसीर तादाद में तलबा और नौजवानों ने शिरकत की। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ये रैली पुलिस हेडक्वार्टर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के आगाज के मौके पर तिरंगा परिवार की जानिब से हुब्बुल वतनी के गीतों पर मुश्तमिल कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी योम जमहूरिया तकरीब जोशो खरोश के साथ मुनक्किद की गई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर एनसीसी सीनियर कैडेट्स के तलबा और तालिबात ने मार्च पास्ट किया। वाइस चांसलर और उनकी अहलिया ने यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस में दाखिल मरीज तलबा को फल तकसीम किए। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। दारुल हुकूमत दिल्ली में निकाली गई योम जमहूरिया की परेड में रियासत कर्नाटक ने अपनी नुमाइंदगी टीपू सुल्तान शहीद की झांकी के जरिए दर्ज की। रियासती हुकूमत के इस्तेमाल पर रियासत के मुसलमान और टीपू सुल्तान के शहदाइयों ने खुशी का इजहार किया है। ये पहला मौका है कि नई दिल्ली में मुनक्किदा 65वें योम जमहूरिया के परेड में मुजाहिद आजादी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को झांकी के जरिए खिराज पेश किया गया। मुल्क भर में टीपू सुल्तान के शहदाइयों के लिए ये लम्हा फख्र और खुशी का बायस रहा। रियासत के वजीर इत्तलात आम्मा आर रोशन बेग ने कहा कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान के कारनामों को नुमाया करने की कोशिशों का ये आगाज है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये झांकी ही सही हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम में कि उनका जो कंट्रीब्यूशन स्टेट के लिए रहा वो उस झांकी में हम दिखाना चाहते हैं। वो छोटी बात नहीं है। रिपब्लिक डे में जब हर रियासत के हिंदुस्तान के उसके एक नुमाइंदगी एक झांकी होती है तो उस झांकी में शहीद का रहना। मिली इदारों के जिम्मेदारों का कहना है कि देर से ही सही लेकिन कर्नाटक हुकूमत ने काबिल तहसीन इकदाम किया है। साथ ही हुकूमत से ये मुतालबा भी किया गया कि वो मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में पेश किए जाने वाले दीगर मुतालबात को भी पूरा करे। आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद जो है आजादी के सबसे पहले मुजाहिद थे और सबसे पहले शहीद थे जो उन्होंने मुल्क के लिए अपनी शहादत पेश की। तो ये बहुत ही बिफिटिंग था और बहुत ही सही था फैसला कि उनकी झांकी निकाली जाए और इनकी याद को ताज़ा किया जाए। इंशाअल्लाह हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि उन्होंने जिस मकसद को लेकर हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए लड़ा था और फिर जो तालीम के सिलसिले में उन्होंने किया था उसके मुताबिक इक़दामात हों और हुकूमत उनकी तमाम चीज़ों को यहाँ ख़ास तौर पर कर्नाटक के अंदर हो और सारे हिंदुस्तान के अंदर हो। अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर की चौथी जंग में शहीद होने वाले हजरत टीपू सुल्तान का शुमार हिंदुस्तानी तारीख की अजीम शख्सियात में होता है। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। योम जमहूरिया के मौके पर गुलाबी शहर जयपुर के करबला मैदान में एक जलसा हुआ। इस जलसे में हेल्पिंग एंड फाउंडेशन की जानिब से 25 जोड़ों की इज्तिमाई शादी कराई गई। इसके अलावा राजस्थान हज ट्रेनर्स जयपुर की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि आज खास बात का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार।
जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। जादू टोना, पुलसरात, हराम हलाल और इस तरह के दीगर मौज़ूआत पर इस्लामी अहकामात की मंजरकशी करने वाले मॉडल्स और पेंटिंग्स की नुमाइश का हैदराबाद में एहतमाम किया जा रहा है। मलकपेट इलाके में वाक़ जामिअतुल बनात इस्लाहिया में जारी इस 4 रोजा नुमाइश में जामिया की तालिबात ने 40 मॉडल्स और 300 पेंटिंग के जरिए इस्लामी अहकामात और तारीखी वाक़यात को पेश किया है। दिलकश मनाजिर और तस्वीर पर मबनी ये नुमाइश जामिअतुल बनात इस्लाहिया के कैंपस वाक़ मलकपेट हैदराबाद में 28 जनवरी की शब 8 बजे तक जारी रहेगा। मुनक़िद करने का मकसद ये है कि आम्मतुल मुस्लिमीन और खुसूसन ख़वातीन को इस्लाम के पैगाम से आशना किया जाए। चुनांचा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉडल्स और पेंटिंग्स रखी गई हैं जिसमें किसी न किसी पहलू से इस्लाम का कोई हुक्म या तारीख का कोई वाक़या बयान किया जा रहा है। प्रिंसेस दुरेशवार ने पुराने शहर हैदराबाद के अवाम के लिए 1983 में एक फ्लाई अस्पताल की तामीर का आगाज कराया था, जो सन 1989 से प्रिंसेस दुरेशवार चिल्ड्रंस एंड जनरल अस्पताल के नाम से काम कर रहा है। प्रिंसेस दुरेशवार ने इस अस्पताल को कायम करने के लिए अपने महर की रकम का अतिया दिया था। लगातार 25 साल से यह अस्पताल अवाम और खासतौर पर बच्चों के इलाज के लिए शोहरत रखता है। कल प्रिंसेस दुरेशवार की 100वीं सालगिरह के मौके पर अस्पताल के स्टाफ ने दुरेशवार को खराज अकीदत पेश किया। ये प्रिंसेस दुरेशवार हॉस्पिटल का लेड ऑन स्टोन 1983 में हुआ था और इसका इनाग्रेशन 1989 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एनटी रामाराव साहब भी आए थे और प्रिंसेस दुरेशवार भी आए थे, हर हाइनेस। और ये हॉस्पिटल को पूरा पैसा हर हाइनेस के जो महर की रकम थी उससे बनाया गया है। उनका ये एसेट जो महर का पैसा इतना काम में आ रहा है और वो वुमेन्स के भलाई और बहबूद के लिए और बच्चों की सेहत के लिए जो दूर अंदेशी से ये हॉस्पिटल खोला गया है। आज हमको अब समझ में आता है कि आज कारपोरेट लेवल कितने महंगे हो चुके हैं, मगर यहाँ पर 2 लाख बच्चे हर साल सेहतयाब होके जाते हैं। वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तुर्की के आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद आफंदी की दुख्तर और आखिरी निजाम हैदराबाद मीर उस्मान अली खां की बहू प्रिंसेस दुरेशवार की कल 100वीं सालगिरह थी। इस मौके पर चौमाला पैलेस हैदराबाद में प्रिंसेस दुरेशवार की जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों पर ली गई नादिर तस्वीर पर मबनी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। नौजवान तारीखदान मोहम्मद सफीउल्लाह हैदराबाद के एक ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने खानदान आसिफिया से मुतालिक हजारों की तादाद में तस्वीर जमा की हैं। पहली जंग अजीम के बाद साबिक़ा रियासत हैदराबाद की तारीख पर अपने असरात मुरतब करने वाली शख्सियत प्रिंसेस दुरेशवार की आज 100वीं सालगिरह है। इसी मुनासिबत से मोहम्मद सफीउल्लाह प्रिंसेस के नादिर और नायाब तस्वीर की नुमाइश का सलातीन आसिफिया की रिहाइशगाह चौमोहल्ला पैलेस में इनेकाद किया गया। प्रिंसेस दुरेशवार पे ये जो फोटोग्राफिक एग्जीबिशन हो रही है ये वाकई बहुत बहुत अच्छी चीज है और मैं समझता हूँ लाजवाब भी है, क्योंकि मैंने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं लेकिन इतनी जो कलेक्शन है वो मैंने अभी तक नहीं देखी। मुझे बहुत लुत्फ आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। इंतहाई खुशी की बात है कि जनाब मोहम्मद सफीउल्लाह साहब की काविशों से आज ये 100 साला तकारीब मनाई जा रही हैं प्रिंसेस दुरेशवार हर हाइनेस द प्रिंसेस ऑफ बरार की। मैं समझता हूँ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने से होता यह है कि हम हमारे कल्चर के ताल्लुक से, हमारी तहजीब के ताल्लुक से अवेयर रहते हैं। इसमें यह रहता है कि लोगों में वो पुराने चीज़ों का तकाबुल नए चीज़ों से करके, पुराने इंतजामिया का तकाबुल नए चीज़ों से करके आसार पैदा हो सकते हैं कि किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। प्रिंसेस दुरेशवार की बचपन तुर्की में और यूरोप में गुजारे हुए उनके अय्याम निजाम मीर उस्मान अली खां के बड़े लड़के
प्रिंस आजम जाह से उनकी शादी और उसके बाद हैदराबाद में उनकी जिंदगी का अहाता करने वाली तस्वीर को पेश किया गया है। आप लोग जानते हैं आज 26 जनवरी है और प्रिंसेस दुर्रा शहवार की 100th बर्थडे है, तो वो तकरीब को जो है जेर नज़र रखते हुए जो है ये एग्जीबिशन का एहतराम किया गया है, जिसमें उनकी तकरीबन 4 साल की उम्र से लेकर उनकी ऑलमोस्ट 80-90 साल की उम्र तक की तस्वीरें उसमें दिखाई गई हैं, जो उनकी टर्की में उनकी ज़िंदगी थी और शादी होने के आने के बाद यहाँ पर 1931 में आने के बाद वो कैसा उनके हालात थे और उनके मियाँ जो आजम जा प्रिंस ऑफ बरार जो इस्माइल खां के सबसे बड़े साहबजादे थे, उनके साथ उनकी ज़िंदगी, और बाद में 1970 में उनके मियाँ का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद 36 साल की और उनकी लंदन की ज़िंदगी उसके तस्वीरों में ये जो है दिखाया गया है। प्रिंसेस दुर्रा शहवार ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम लंदन में गुजारे और उनका इंतकाल 2006 में हुआ। ETV न्यूज हैदराबाद। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अक़लियती तबका से ताल्लुक रखने वाले 100 होनहार तलबा को सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की मुफ्त कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में GO भी जारी हो चुका है। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर S. शुकूर से ETV नुमाइंदा अनीसुर रहमान रूबरू हुए। पेश है बातचीत के कुछ इक़्तिबासात। आंध्र प्रदेश ने रियासत के अक़लियतों के लिए फ्री सिविल सर्विसेज की कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के MD और वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर S. शुकूर साहब। सर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये जो सिविल सर्विस की कोचिंग का जो आपने ऐलान किया है वो किस किस्म का है, क्या किया जाएगा इसमें? दरअसल हुकूमत आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी वेलफेयर के बजट के जरिए काफी गौर व खुश के बाद हुकूमत ने गुज़िश्ता साल स्पॉन्सर करने की एक स्कीम हम लोगों को दी गई थी, लेकिन अब हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जनाब उमर जलील साहब आने के बाद हमारे मिनिस्टर साहब के ताउन से उसमें बहुत सारे मीटिंग्स हुए और उसके बाद एक नई स्कीम ये ऐलान किया गया है, GO जारी किया गया है कि 100 अक़लियतों के उम्मीदवार जो सिविल सर्विस करना चाह रहे हैं उनको एक प्राइवेट अच्छे से इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सर करना 100 मेंबर्स को, और उसका सारा जो है पेमेंट जो है CDM की जानिब से, हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। तो ये 100 बच्चों को कोचिंग प्लस उनके साथ स्टडी मटेरियल, वो इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट को रिपीटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए उसके हम टेंडर कॉल करेंगे, उस इंस्टीट्यूट के जरिए कोचिंग दी जाएगी। सारा का सारा पेमेंट हुकूमत की जानिब से किया जाएगा और जो है वो बच्चों को जो ट्रेनिंग है C-सेट की, यानी कि प्लिम्स जिसको कहा जाता था अब उसको C-सेट कहा जा रहा है, C-सेट की कोचिंग का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद अगर C-सेट में बच्चे हमारे क्वालिफाई होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनको मेन की कोचिंग का भी इसी तरीके से स्पॉन्सर करने का इंतजाम किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है अक़लियतों के लिए, क्योंकि इस स्कीम को निकालने से पहले हम लोगों ने बहुत से सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और मिनिस्टर और हम लोगों ने बहुत गौर खोज किया इस स्कीम के बारे में, क्योंकि मुसलमानों की जो इस वक्त अक़लियतों के जो अहदेदार है सिविल सर्विस में, खास तौर पर IAS, IPS, IRS, IFS में ना के बराबर है, बहुत कम अहदेदार बाकी रह गए हैं। तो इन पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में मुसलमानों को आना चाहिए, खासतौर पर अक़लियतों को आना चाहिए। उसी के लिए हुकूमत की जानिब से इस फ्री कोचिंग का इंतजाम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्कीम पहली मर्तबा न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि सारे हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि हुकूमत की जानिब से ये पहली स्कीम है और आंध्र प्रदेश में तो फर्स्ट टाइम ये स्कीम का जो है हम लोगों ने ऐलान किया है। उम्मीद कब है साहब, ये नोटिफिकेशन इसका कब तक आएगा? इस नोटिफिकेशन का अभी तो GO कल ही जारी हुआ है उसका, तो हम लोग इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वो पेपर सेटिंग करवाना है, नोटिफिकेशन देना है। तो इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के बाद हम ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे और अप्लाई करने के 1 हफ्ता वक्त रखेंगे अप्लाई करने के लिए, जिसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद रिजल्ट दिया जाएगा, उसके फौरी बाद जो है स्पॉन्सर किया जाएगा। और एक बात भी ये है कि इन जो 100 कैंडिडेट थे उसमें ये बात पे भी गौर किया जा रहा है कि जो आउट ऑफ स्टेशन के कैंडिडेट हैं, जो अजला के कैंडिडेट हैं, उन लोगों के लिए एक 1500 रुपए का जो है स्टे फंड भी देने की हम लोगों ने ऐसी बात चल रही है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। आखिर में मैं तमाम अक़लियती तलबा से जो
बैचलर डिग्री रखते हैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि इस स्कीम से इस्तेफादा करें और ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम से फायदा उठाने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर एस.ए. शकूर जो मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट है आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। ये हमें बता रहे थे कि किस तरह हुकूमत आंध्र प्रदेश अक़लियतों के लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग का एहतमाम करने जा रही है। मैं कैमरामैन नागेश्वर राव के साथ अनीसुर रहमान, ETV न्यूज हैदराबाद। खास बात